প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে নতুন সংসদ ভৱন। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যজ্ঞ আৰু পূজা অৰ্চনাৰে মুকলি কৰিলে নতুন সংসদ ভৱনটো। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনৰ সোঁফালে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে চেনকল তথা ৰাজদণ্ড। সংসদ ভৱন উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ দিছে, দেশবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছে। সমান্তৰালকৈ নতুন সংসদ ভৱন কেৱল এটা ভৱনেই নহয়, 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ আকাংক্ষা আৰু সপোনৰ প্ৰতীক। স্বাধীনতা সেনানীৰ সপোন সাকাৰ কৰিব নতুন ভৱনটোৱে। নতুন সংসদ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ সূৰ্যোদয়। ভাৰত যেতিয়া আগবাঢ়িব তেতিয়া বিশ্বও আগবাঢ়িব। আজি এক ঐতিহাসিক দিন ভাৰতৰ বাবে। পবিত্ৰ চেনকলৰ গৰিমা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। এইকেইটা মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সমান্তৰালকৈ তেওঁ কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে। আমি সেই মন্তব্যসমূহ আপোনাক একেধাৰে শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পৰৱৰ্তী সময়ত বিষয়টোক লৈ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কি কৈছে, উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কি কৈছে, লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কি মন্তব্য কৰিছে, তাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি মন্তব্য কৰিছে, আপোনাক আমি একেধাৰে শুনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছোঁ সেইসমূহ দৃশ্য। সংসদ ভৱনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা পূজাৰ দৃশ্য। তাৰ পাছত এই ৰাজদণ্ডডাল লৈ অহাৰ সময়ত চেনগল স্থাপন কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেনেকৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী, লগতে লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকী, নিৰ্মাণ শ্ৰমিকক মোদীয়ে সম্বৰ্ধনা জনাইছে। যিহেতু 60,000 নিৰ্মাণকাৰী তাত জড়িত আছিল, তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছে। 60,000 লোকৰ এই প্ৰচেষ্টা, ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টা নোহোৱা হ'লে হয়তো এয়া সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন বুলি মোদীয়ে কৈছে। গতিকে প্ৰতিগৰাকীক এনেধৰণে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ কথা অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে জনাইছিল। অমিত শ্বাহে অসমতো আহি সেই কথা মন্তব্য কৰিছিল। বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত 25 মে'তো সেই কথা মন্তব্য কৰিছিল। কলাক্ষেত্ৰতো সেই মন্তব্য কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসমূহ পৰিৱেশ য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 60,000 সেই কৰ্মীক, তাৰ পৰা কেইগৰাকীমানক সম্বৰ্ধনা জনাই আটাইকেইগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়াৰ পৰা নিজৰ হ'ব, ব্ৰিটিছৰ নহয়। ভাৰতৰ সংসদ ভৱন, ভাৰতৰ গৌৰৱ, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা মন্তব্য। আৰু তাৰ পাছত নতুন সংসদত এনেকৈ সকলোকে উপবিষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ত্ৰিভুজাকাৰ এই সংসদটো, ত্ৰিভুজাকাৰ সংসদটোত খুব কম সময়ৰ ভিতৰত গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ই কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে। আনন্দিত হৈছে সেয়েহে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়। আপোনাক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত য'ত স্থাপন কৰাৰ দৃশ্য, য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অধ্যক্ষগৰাকীৰ সৈতে অহাৰ দৃশ্য, য'ত পূজা কৰাৰ দৃশ্য, আৰু এয়াৰ ৰাজদণ্ডডালৰ দৃশ্য। আপোনাক চাৰিটাকৈ দৃশ্য একেলগে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোৰ ঐতিহাসিক এক মুহূৰ্ত, আৰু সেয়া সাক্ষী হৈ ৰ'ল সমগ্ৰ দেশবাসী। ইয়াৰ পাছতে আমি আপোনাক 6টাকৈ দৃশ্য একেলগে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্মোচন কৰিলে, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগবঢ়াই নিলে। এই 6টাকৈ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। আমাৰ সংসদ, আমাৰ গৌৰৱ। উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তাক লৈ মন্তব্য কৰিছে। উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কি মন্তব্য কৰিছে আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আমি শুনাম ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কি কৈছে, তাৰ পাছতে আমি উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰো মন্তব্য শুনাম, লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰো শুনাম, আৰু একেধাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰো মন্তব্য শুনাম। শুনাবলৈ লৈছোঁ দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কি কৈছে। भारतीय लोकतंत्र के श्रद्धा स्थल भारत की संसद के नए भवन के लोकार्पण समारोह में आप सभी गणमान्य अतिथिजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आजाद भारत की अस्मिता और हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का प्रतीक संसद के इस नए भवन को देश को समर्पित करने के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना अत्यंत सम्मान और सौभाग्य की बात है, अविस्मरणीय क्षण है। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि आजादी के अमृत काल में उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और असाधारण प्रयासों से स्वतंत्र भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नए संसद भवन की संकल्पना को मूर्त रूप दिया है। इसके लिए अपनी ओर से और समस्त देशवासियों की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। आज हम सब ऐतिहासिक अवसर पर इस भवन के प्रांगण में एकत्रित हैं।
यह भवन ईंट और गारे की संरचना मात्र नहीं है, बल्कि देश की सर्वोच्च चुनी हुई संस्था के रूप में यह भवन देश के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। यह नया भवन अपने आप में वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत और विविधता की अद्भुत झलक मिलती है। इसमें हमारी संसद की जरूरतों के अनुरूप सौंदर्य और प्रौद्योगिकी का मिश्रण भी किया गया है। यह भवन त्रिकोणीय आकार के स्थान का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों में पुराने भवन की तुलना में कहीं अधिक लोगों के बैठने का स्थान है। इन कक्षों में प्रत्येक सदस्य के लिए पूरी तरह डिजिटली वायर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित प्रणाली एवं इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया डिस्प्ले की सुविधा, अतिरिक्त सुरक्षा बटन के साथ मतदान प्रणाली सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि माननीय सदस्य अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सकें। देश की गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा में आज का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगले 25 वर्षों में जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तब इस अमृत काल में निर्मित यह नया संसद भवन हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। इस भवन में बैठकर हमारी संसद देश के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए अनेक कालजयी निर्णय लेगी, और वह दिन दूर नहीं जब भारत आने वाले वर्षों में विश्व के लोकतांत्रिक देशों में शिखर पर होगा और समस्त विश्व को प्रभावी नेतृत्व देगा। इन्हीं शब्दों के साथ यहां पधारे सभी सम्मानीय अतिथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। আনফালে নতুন সংসদ ভৱন উদ্বোধনীত উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াব বিচাৰিছো। भारत के उपराष्ट्रपति संदेश भारतीय लोकतंत्र की अभूतपूर्व विकास यात्रा की इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घड़ी और गौरव क्षण में पूरे देश को हार्दिक बधाई देते हुए मुझे अपार खुशी है। हमारा मौजूदा संसद भवन आजादी मिलने से आज दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में भारत की पहचान बनने तक की ऐतिहासिक यात्रा का गवाह है। मुझे पूरा यकीन है कि इस अमृत काल के दौर में बना नया संसद भवन आगे भी हमारी तेज प्रगति का साक्षी रहेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने से लेकर जनता की मूलभूत सभी जरूरतों की पूर्ति तक, देशवासियों को सशक्त बनाने से लेकर समग्र गरीबी उन्मूलन तक यह गौरवशाली भवन भावी दशकों के दौरान अनेक ऐतिहासिक पलों का अध्याय लिखेगा। नई संसद हमारी शाश्वत धाराओं का प्रतीक है। यह हमारी समृद्ध भारतीय वास्तुशिल्प परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ प्रगति विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को सर्वोत्तम तरीके से आत्मसात करने की हमारी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। वैश्विक कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियां हमारे कर्मठ व प्रतिबद्ध श्रम शक्ति के अटल संकल्प को रोकने में विफल रहीं। यह भव्य देशज नई संसद गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के हमारे राष्ट्रीय संकल्प का भी प्रतीक है। मुझे बेहद खुशी है कि हमारी संसद का नया भवन भारतीय मूल्यों संस्कारों का प्रकाश स्तंभ है। इसमें हमारे मुल्क की विविधता, देश के हर कोने से लाई गई कलाकृतियां व मूर्तियां हैं, जो भारतीय कला तथा संस्कृति की श्रेष्ठतम प्रदर्शनी के रूप में इसकी भव्यता में चार चांद लगाती है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यह वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं, हसरतों की सुचारू पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही सनातन परंपराओं तथा श्रेष्ठ लोकतांत्रिक मानकों के संरक्षक के रूप में भी काम करता है।
संसद का यह भवन देश के कोने कोने के भिन्न भिन्न श्रेष्ठ विचारों को प्रतिबिंबित करेगा। इनके बीच राष्ट्रीय सहमति बनाने की दिशा में इसका अमूल्य योगदान होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि संसद का नया भवन नीतियों और विधानों के माध्यम से देश के हाशिए के लोगों को विशेष तरजीह देते हुए सभी देशवासियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का सक्रियता से समाधान सुनिश्चित करेगा। इस तरह भारत की बुनियादी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगा। यह मुल्क लोकतंत्र का पालना है। दुनिया के सबसे पुराने और बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं के वैश्विक फैलाव और संरक्षण में सहायक रहा है। मैं आश्वस्त हूं कि सम्मान, महिमा, विज्ञान, महान संस्कृति का प्रतीक संसद का नया भवन लोकतंत्र को जीवंत रखने एवं सुदृढ़ करने की दिशा में हमारे सतत प्रयासों को पुनः नई ऊर्जा और बल देगा और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह कहते हुए मुझे अपार खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आजादी के बाद जन्म लेने वाले हमारे मुल्क के पहले प्रधानमंत्री हैं, इस शानदार भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संसद लोकतंत्र का मार्गदर्शक ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार है। संसद लोगों के जनादेश को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रामाणिक मंच है। किसी देश की नियति को दिशा देने में इसकी निर्णायक भूमिका असंदिग्ध है और यह प्रजातंत्र का मूल मंत्र और सार है। तकनीकी रूप से सशक्त संसद निश्चित रूप से संसद सदस्यों को राष्ट्र की नियति को आकार देने के लिए अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को श्रेष्ठतम रूप से उजागर करने में सक्षम बनाएगी। लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रस्फुटित करना सुनिश्चित करेगी। लोकतंत्र के मंदिर के रूप में संसद की उदात्तता को बढ़ाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि नया भवन भविष्य की भावी चुनौतियों के बीच भारत का पथ प्रदर्शक बनेगा। हमारी साझा उमंगों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को सार्थक और सशक्त दिशा देगा। हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी